ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਮਨ ਡੋਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੈ। ਸਭ ਜਗ ਸਾਚਾ ਜਾਂ ਸਚ ਮੈਂ ਰਾਤੇ, ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੀ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਗਲ ਦੁਖ ਮਿਟੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੰਧਨ ਤੇ ਛੁਟੇ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਿਟੇ ਮੋਹ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਰੇਣ ਮਚਨ ਸਭ ਧਰਮ। ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਾਧਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮਰੀ ਜਿੰਦ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਆਵੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਬੈਠਣ ਪਾਵੋ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ PhD ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘੋਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਕਸਦ, ਵਿਕਾਰ, ਮਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਝੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੋਵੇਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜਗ ਸਾਚਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਾਤੇ। ਹਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਣਗਿਣਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ,
ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਸੰਖ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ, ਨੇਕ, ਸਿਆਣੇ, ਦਾਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੇ। ਅਣਗਿਣਤ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅੰਧ ਘੋਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਬਟ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਾਈ ਈਰਖਾ, ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਮੂਰਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕਲਪਾਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਲਪ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ ਸਾਚਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਮੈਂ ਰਾਤੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਾਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਾਂਤੇ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਸੌਖੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਰੀ ਬੇਗਾਨੇ ਵਾਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਏਡੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਸਿੱਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਟੱਕਰਿਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਲਪੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ, ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ, ਦਿਲ 'ਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬੋਸਟਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇਗਾ।
जे ताकत है, अहुदा है, गुरु दी कोल सिक्ख्या भी है, तो उस ताकत की कदे मिसयूज नहीं करेगा, उन्होंने सही पासे वरतेगा। घर है, गुरु दी नाल गुरमत भी है, वो घर भी मंत्र बन जाएगा। किन्नी चीज़ां ने, शब्द लम्मा है, आप अगली गल शुरू करिए। सतगुरु जी ने कृपा की, जदों मन मेरा गुरु चरणों में आके जुड़ गया। एक बेनती और करते हैं, तुसी किसी भी आम करके जाते हो, तुसी देखो हुण स्टोरां तो भी फ्लैर आ जाते हैं अपने घरां च, भई अज ए चीज़ां स्टोर से सेल च लगियां ने, सौखा जिहा समझ लग जाती है। यकीन करके जाने मनुख गुरु चरणों में आउंदा, इहनूं इन्ना पता ही नहीं लगता भी इत्थों मिलता की है। अज दे शब्द नूं बड़े ध्यान नाल सुणिओ, की मिलता है। पहलियां पंक्तियां ने, सतगुर दर्शन अग्नि निवारी। कहते जदों मैं सतगुरु के दर्शन किए, दर्शन करना की है, बड़ी ध्यान नाल सुणो। आह जिहड़ा कुछ असीं देखते ना, ये दीदार है, ये दर्शन नहीं है। दीदार का मतलब होंदा अख नाल तकना। जदों तुसीं अरदास में शामिल होंदे हो ना, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ, दीदार का पाठ वखरा है, दीदार वखरा है। पाठ का मतलब है दर्शन, दर्शन का मतलब है सिद्धांत, सिद्धांत का मतलब है फिलोसफी। फलसफा की है, गुरु का उपदेश की है, गुरु का सिद्धांत की है। जिस दिन मनुख ने उस फिलोसफी के दर्शन किए, उस दिन इन्हें दर्शन करने ने। जे वो नहीं समझिया, फिर तो सतगुरु का पावन वचन है। गुरु नानक साहब जी को किन्ने लोगों ने देखा सुनिया, और सारे लोग धर्म के राह थोड़ा पै गए। मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराती दरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया, देखिया, परखिया, बाकी विचारिया, ये गल्लां सच्चियां कहंदे ने। छे गरबासना भरिया रे, वो मुक्त होए ने। इस तरह धन गुरु अर्जन साहब जी नूं जिहड़े सीस ते रेत पा रहे सी, वो भी तो कोल ही खड़े सी ना, पर सिद्धांत तो वाकफ नहीं सी गुरु अर्जन पातशाह दे। वो सिर्फ दीदारे कर रहे हैं, देख रहे हैं गुरु अर्जन पातशाह तत्ती तवी ते बैठे नूं, उहदे सिद्धांत नूं थोड़ा समझ रहे हैं। सिद्धांत नूं समझ लेंगे, फिर पता लग जाना सी भी ये तत्ती रेत पाउण वालियां नूं भी माड़ा नहीं कहंदे। सबको मीत हम आपन की न। जिस दिन मनुख गुरु कोल आके दर्शन करता है, उस दिन सब तो पहली गल उहदी तृष्णा की अग बुझ जाती है। एक पल मैनू होर लेना पैना, फिर आप इत्थों गल शुरू करांगे। तीन को गल्लां लम्मियां ने, पर मैं छोटी छोटियां सांझियां कर लगा। तीन गल्लां हमेशा पल्ले विच बनीए ते सानू सिੱਖੀ समझनी बहुत सौखी हो जाएगी। तीन गल्लां। नंबर एक, जदों दूजे धर्मां दे विच धर्म दे नां ते कर्म कांड कीता जाण लग पिया, भरम कमाउण लग पे लोग, इंसानियत लुट्टी जाण लग पई, उदों सिੱਖੀ दा जन्म होया। नहीं तो दुनिया पर पहला भी सी। गुरु अमरदास जी ने किसी ने सवाल भी किया सी भी सतगुरु इन्ने धार्मिक ग्रंथ, इन्ने धार्मिक स्थान, इन्ने धर्मी बंदे बाहर ने, फिरते ने, विचरते ने, किन्ने धार्मिक ग्रंथों की किहड़ा कोई कमी है, तुसीं नवां क्यों चला रहे हो। हजूर कहण लगे भी इवें है सजना, उन्हां लोकां ने जिवें खूह है, अपनी पैली नूं पानी दे लैंदे ने ते बाकी लोग बेचारे तड़फते ने। असीं इवें बनाउण लगे हैं जिवें मींह पैंदा, वरखा पैंदी है। वरखा हुण कई बार मेरे वेड़े थोड़ा पैंदी है, दूजे गुआंढी दे भी तो पै रही है। असीं धर्म इवें दा बनाउण लगे हैं। तो गुरु साहब जी ने उदों गल शुरू की जदों बाकी धर्मां दे विच भरम भारू सी, धर्म दे ही नुमाइंदे लोकाई नूं लुट रहे सी। ये गल वक्री है भी अज सिੱਖੀ विच भी अजिहा बहुत कुछ हो रहा है। एक वखरा पक्ष। दूजी गल, गुरु जी दे कोल आके जिहड़ा एक मंत्र शब्द है ना, भाई कान सिंह नाभा दे अर्थ पढ़िओ कदे। मंत्र शब्द का अर्थ दूजे धर्मां विच ये है भी किसी देवी देवते नूं वश करन वास्ते बार बार रिपीट करना। गुरमत विच मंत्र शब्द का अर्थ है सलाह। गुरु वालों जीवन की सफलता लई दित्ती हुई सलाह। तो जदों असीं सलाह नूं असीं मन्नांगे, विचारांगे,
तो जरूर मनुख का जीवन का पार उतारा हो जाएगा। तीजी गल यह भी असी ये समझ लेने, मैं मत्था टेक लिया, डॉलर इधर रखिया, डॉलर उधर रखिया, लंगर छक लिया, शायद मेरी फॉर्मैलिटी खत्म हो गई। नहीं, इत्थों एक उपदेश मिलता है जिन्हों मैं बाहर दुनिया च विचरद्या होया कमाना है, तो जिंदगी लेखे लगनी है। हुण आ शब्द मैं एक बार फिर पढ़ना। शिव जी कृपा करते, सतगुर दर्शन अगन निवारी। जदों मैं गुरु को आया, गुरु ने मैनू समझाया भी पुੱਤ दुनिया दे विच देख, तू नेक कमाई कर, सुख की रोटी खाएगा। जे इवें नहीं करेगा तेरे को बहुत कुछ होगा, पर चेता रखी तेरी वो जमीर तेनू रोज लानता पाएगी, कदे मुक्त नहीं हो पाएगा। वो किड्डा बंदा दुखी है जिहड़ा बंदा अपने आप दियां नज़रां च डिग्या होया। वो जदों गुरु नूं मिलदा है इवें वो तृष्णा छड्ड दिंदा है, फिर तृष्णा छड्ड दिंदा है, कमाई करदा है। और तृष्णा का मतलब भी समझ लेना, अपनी जिंदगी दियां लोड़ां पूरियां करन दा नाम तृष्णा नहीं है। तृष्णा है ਜਿਹੜੇ लोग 10 नोहां की किरत की बजाय नशे बेच के किसी के घर का चिराग बुझा के मैं अपने बच्चों की रोटी चलावां, ये किवें हो सकता? भलिया दूजे के चिराग बुझाउण वाले आ, कल तेरा चिराग जगता रह जाएगा। ये वाली तृष्णा, शरीर बेच रहे हैं, जमीर बेच रहे हैं, धियां पुत बेच रहे हैं। सतगुर भेटत हौमे मारी, दूजी प्राप्ति की है। जदों मनुख गुरु के चरणों में जुड़ता है तो उन्होंने हौमे नूं काबू विच करन दा ढंग आ जाता है। उन्होंने पता लग जाता है, मना तू काहदे लई मैं करी जाना, तू अपने परदादे का नाम नहीं जानता। तो जिन्ने बैठे ने उन्हां चों बहुते होणगे जिहड़े परदादे तो एक दादा पिछे किसी नूं भी नहीं पता नाम दा। जद कि धरती ते जिस दिन वो होणगे उस दिन कहते होणगे भी साडे आखे धरती चलती है। तेरी पीढ़ी है, तेरे दादे परदादे ने, मना तू नहीं जानता तो दूजिया की जानना है। इत्थे बहुत लोग होके चले गए जिहड़े कहंदे सी भी साडे तुरियां धरती हिलदी है, साह लिया आकाश कंबदा है, पर अज उन्हां दा नाम भी नहीं। ते मना काहदे लई हंकार करी जाने? 4 दिनां दी गल है। समय ने 2 वरके अगे वरे दे अगे टपा दिते ते तेनू किसे नहीं पुछना, किसे नहीं तेन पुछना, तेन कोई किसी ने तेरा नाम नहीं लेना। तो काहदे लई जिहड़े 4 दिन मिले हैं तू आराम नाल क्यों नहीं कटदा? हंकार विच क्यों बर्बाद करने अपनी जिंदगी नूं? सतगुर भेटत हौमे मारी, सतगुर संग नाही मन डोलै। सब तो पहला मन डोलता है, फिर तन डोलता है। और यकीन करके जाने हो, जदों भी कदे मन की स्थिरता आती है वो केवल गुरु शब्द नाल आती है, क्योंकि बाणी नहीं डोलती, गुरु नहीं डोलता। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ थोड़ी जी हनेरी आवे बंदा किहदा सहारा लैंदा? ਉਹਦਾ सहारा लैंदा ਜਿਹੜਾ आप ना डोले। ਜਿਹੜਾ आप भी डोलदा मैनू की डोल कर सकता है? सतगुरु नाल मिल मना, सतगुरु डोलदा नज़र नहीं आएगा, सतगुरु किते डोलदा नज़र नहीं आएगा। ये पुत्तां दियां लाशां कोल दी भी निकलदा है, ये अपनी बसाई आनंदपुर की धरती को छड्ड के तुर जाता है। ये नंगे पैरी छालियां वाले सफ़र तय कर लेंदा है, पर गुरु कदे डोलदा नहीं है। ते मना तू ओदा सहारा ले, सतगुर संग नाही मन डोले। वो मन नहीं डोलदा, माया ते भी सबर कर लेंदा है, विकारां नूं भी काबू कर लेंदा है, हौमे नूं भी काबू च कर लेंदा है। वो डोलदा नहीं है। तुरना गल वखरी है, डोलना गल वखरी है। डोलदा कदों है? डिगन डोलन तौलो, उदों तक डिगना डोलना बनिया रह सकता है। जब लो मन के भरमा, जदों तक मेरा मन किसी भरम दे विच है, जदों मेरे मन ने हकीकत समझ ली ना, सच समझ लिया, फिर इन्हें डोलना नहीं है, आनंद मानेगा। सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले। गुरमुख का अर्थ है इत्थे गुरु की शरण विच पै के। जदों मनुख गुरु की शरण विच पै के बाणी बोलता है, ये क्यों कहा है?
वैसे नहीं घर बैठ के नहीं बाणी बोल सकता है। याद रखियो जे ਜਿਹੜੇ जोगी ਉਹ ਇਕੱਲੇ ही बैठे सिमरन करते ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ गलत काम कोई भी नहीं करते, पर गुरु ने प्रमाण नहीं किए। क्यों? क्योंकि कई बारी बंदा तपस्या का भी हंकार कर लेंदा है। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार। सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत ने ਜਿਹੜੇ इस गल ते लगे हुए ने जी तुसीं इन्ने लख पाठ करो। ਉਹ मना जिथे गिणती है ना, हिसाब किताब है, याद रख उत्थे प्यार कदे नहीं पैदा हो सकता। जिथे व्यापार है उत्थे प्यार नहीं पैदा हो सकता। व्यापारी का मतलब होंदा भी यह दुकान तो सस्ता मिलता है, 10 साल सस्ता दिंदा रहा, मैं 10 साल की दुकान पर जाता रहा, 11वें साल ने महंगा करता, नाल दी दुकान ने सस्ता करता, मैं दुकान बदला लेनी है। ये व्यापार है। प्यार की है? तू भावें धक्के दे, तू भावें महंगा ला, तू भावें सस्ता ला, पर तुद नूं छोड़ जाइए प्रभ कह धर। ये प्यार है। भौरे फुल्लां ते आउंदा है, तुसीं लख कोशिशां कर लो, वो नहीं अपनी बिरती नूं बदलाउंदा, क्योंकि प्यार है। मच्छी नूं जिहड़ा मर्जी लिक्विड दे दो, भी बहुत कीमती लिक्विड देना, तैनूं सदियां बीत गईयां पानी च रहिंदी नूं, खारे समुंदर विच रहिंदी नूं, वो कहंदी तैनूं लगदा होएगा पानी मेरा जीवन है, क्योंकि प्यार है। जिथे प्यार है उत्थे कोई बदला नहीं, जिथे व्यापार है उत्थे वाधा घाटा देखा जाता है। ओ मना तू गुरु नाल प्यार करके देख। जदों गुरु की शरण विच पै के नाम जपेगा ना, बाणी पढ़ेगा, फिर यकीन करके जाने मन डोलता नहीं है। संत प्रसाद जपै हर नाम, इस गल नूं बड़ी तवज्जो देकर समझियो। मैं एक बारी पंक्ति फिर दोबारे पढ़न लगा। साहब जी कृपा करते हैं, संत प्रसाद जपै हर नाम। हुण तक शब्द गुरु आ रहा सी, सतगुर संग नाही मन डोले, जिक्र आ गया। सतगुर दर्शन अगन निवारी, सतगुरु का शब्द आ रहा सी। हुण सतगुरु के नाम की थां ही संत शब्द आया है। असीं एडे स्वार्थी हैं, जिहड़े नाम जपते ने उन्होंने नाम के शब्द कढ़ लए, ਜਿਹੜੇ वैसे कीर्तन करते उन्हें कीर्तन वाले शब्द कढ़ ले, ਜਿਹੜਾ बंदा व्यापारी उन्हें व्यापार के वाधे के कढ़ ले, ਜਿਹੜਾ देहधारी उन्हें देहधारी वाले कढ़ ले, संतां ने संतां वाले कढ़ ले। हुण इत्थे संत का अर्थ असल में गुरु है, पर असीं स्वार्थी लोगों ने की किया, सिर्फ इन्नी की पंक्ति सुनाने हैं। देखो मैं बहुत बारी बेनती करना है, गुरु नानक साहब जी की सारे जीवन का निचोड़ जपजी साहब है। करतारपुर साहब कंपाइल किया सी, सारी जिंदगी चो उचारे हुए जपजी साहब है। जपजी साहब एक समय की बाणी नहीं है, ਇਹਦੀਆਂ पौड़ियां ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ करतारपुर साहब लास्ट स्टेज में। गुरु नानक साहब जी की पवित्र बाणी जपजी साहब, सिख के लिए नितनेम विच जपजी साहब, अमृत की बाणी विच पहली जपजी साहब, गुरु ग्रंथ साहब की पहली बाणी जपजी साहब, हर थां ते जपजी साहब का जिक्र। पर जपजी साहब की कोई सोसाइटी नहीं दुनिया च। देखो तुसीं सोहला साहब सिख रोज़ पढ़ता, सोहला साहब की कोई सोसाइटी नहीं। आनंद साहब हदों वध पढ़िया जाता, हर प्रोग्राम की समाप्ति ते आनंद साहब की सोसाइटी सुनी कोई। सिर्फ सुखमनी साहब दीयां सोसाइटियां क्यों ने? क्योंकि प्रचलित ही तां होई है, उहदे च संत की गल है, उहदे च साध की गल है, उहदे च ब्रह्म ज्ञानी की गल है। वो रास आउंदी सी सानूं, असीं वो प्रचलित कर दित्ती। किसी के घर कोई प्रोग्राम होना भी जपजी साहब पाठ करके देखो, उन्होंने सबर ही नहीं आना, उन्होंने सबर ही नहीं आना मैं प्रोग्राम करवाया। क्यों? क्योंकि असीं इन्हां शब्दां दे अर्थ नहीं खोले। संत प्रसाद जपै हर नाम, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ। गुरु की चरणों में, गुरु की मेहर का सदका वो मनुख फिर रब का नाम जपदा है। वो रब की कृपा का सदका, गुरु की कृपा का सदका रब्बी बाणी के कीर्तन नाल, रब्बी जस नाल जुड़ता है। संत प्रसाद सगल दुख मिटै। गुरु की कृपा दे नाल मनुख के जीवन विच वो वाले दुख जिन्हां दा जिक्र पिछे आ चुका होया भी अगन निवारी हौमे मारी, ये सारे दुख उहदे मिट जाते हैं। संत प्रसाद बंधन ते छुटा है।
गुरु की कृपा का सदका मनुख आजाद सोच नाल सोचदा है, आजाद सोच नाल बोलदा है, वो किसी बंधन विच नहीं। असी लोग मूँह देख के बोलते हैं, बस इत्थे तक सीमित है। गुरु नानक साहब ने एक छोटी जी उदाहरण देन लगा है, समा बहुत सीमित है, बड़ी तवज्जो देकर सुने। लोगों ने अंदाजा लाया भी गुरु नानक साहब तलवंडी च जम्मे, उत्थे उन्हां दा प्रकाश होया ते तलवंडी च बोलते ने, कदे पांधे नूं कह दिंदे ने, कदे जनेऊ पाउण वाले नूं कह दिंदे ने, कदे पढ़ाउण वाले नूं कह दिंदे ने, कदे राय बुलार नूं कह दिंदे ने। ये तां तलवंडी इन्हां दी हुई है, अपने घर च कोई भी सच बोल सकदा, किड्डी क वड्डी गल है। पर जदों उन्होंने देखा भी नहीं नहीं, ये कल्ले तलवंडी च ही सच नहीं बोले, ये बनारस भी बोले, ये मक्के भी बोले, ये बगदाद भी बोले, ये जोगियां कोल भी सच बोले। फिर लोगों ने लग्या नहीं नहीं, हरेक जगह ते सच बोलते हैं। फिर लोगों को पता लग्या, कहन लगे अज बाबर नाल सीधी टक्कर है, अज देखते भी अज बोलते हैं। तो जदों गुरु नानक साहब ने बाबर नूं भी सच्चियां सुनाइयां तो लोगों को भरोसा हो गया, ये लोगों वांगू नहीं बोलते, ये लोगों वांगू नहीं बोलते, ये सच ही बोलते ने। ये आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक तलवंडी च बोले तद भी सच, गुरु नानक जोगियां कोल बोले तद भी सच, गुरु नानक मक्के च बोले तद भी सच, गुरु नानक बनारस विच बोले तद भी सच, गुरु नानक बाबर दे मूँह ते बैठ के बोले तद भी सच ही बोलते ने। असी नहीं बोल पाते। साहब जी कृपा करते ने, वो फिर सदा ही उन्होंने जीवन विचों बंधन खत्म हो जाते हैं। संत कृपा ते मिटै मोह भरम। जदों गुरु की शरण विच मनुख आउंदा है, गुरु की कृपा का सदका उसके जीवन विचों मोह अते भरम दोवें चीज़ां खत्म हो जांदियां ने। प्यार अते मोह विच बहुत निक्का जिहा अंतर है, प्रेम अते मोह विच बहुत निक्का जिहा अंतर है। प्रेम हुंदा है मैं तुहाडा हो जा, अपने प्यारे दा होण नूं जी करदा है। मोह कहंदा भी तुसीं मेरे हो जाओ, मैं तुहाडा नहीं होना, ये मोह है। गुरु ने सानू प्रेम सिखाया, मोह नहीं सिखाया। मोह की गिनती विकारां च है, प्रेम की गिनती रब नूं पाउण वालियां च है, चंगे लोकां च है। जदों किते प्रेम होवे ते मनुख चाहुंदा मैं तेरे वर्गा बन जा गुरु। जदों मोह जागे उदों कहना गुरु तू मेरे वर्गा बन, आ मेरी लिस्ट है, ए काम ने मेरे अधूरे ये पूरे कर। वो अपनी लिस्ट रोज दे के चला जाता है। साहब जी कृपा करते ने, साध रेण मज्जन सब धर्म। साध रेण मज्जन सब धर्म। रेण का अर्थ होंदा चरण धूड़ी। हुण ये संबॉलिक शब्द ने, सीधे दे अर्थ करोगे तो सीधे अर्थ नहीं हो सकते। भई साध रेण संगत दी चरण धूड़ी, मज्जन इशनान। हुण संगत दी चरण धूड़ी च किवें इशनान करांगे? देखो आपां चलाकियां करने, पता सानू भी है, ये नहीं भी पता सानू नहीं, असीं भी चलाकियां करने हैं। हुण जिथे जोड़े खाने विच जोड़े खोले जाते हैं, उत्थे मैं किसी नहीं देखिया अपने मत्थे ते चुक के मिट्टी लाउंदे नूं। उत्थों चरण धूड़ कोई भी नहीं लाउंदा, क्योंकि पता भी इत्थे हकीकत में चरण धूड़ है। मैं घंटा लाया तैयार होण नूं, ते जे मैं इत्थों चुक के मत्थे ते ला ली ते मेरी तो सारी ब्यूटी जांदी लगनी है। उत्थे नहीं लाउंदा, इत्थे पता भी चरण धूड़ है ही नहीं, इत्थे पता भी है ही नहीं। इत्थों चुक चुक के मत्थे ते लाई जाने, असीं पता भी इत्थे किहड़ा मत्थे ते लगनी है। सच विच हकीकत विच चरण धूड़ का अर्थ हुंदा निमरता धारण करनी। मैं अपने जीवन में उन्हां जिहड़े चंगे साध ने, जिहड़े चंगे लोग ने, नेक पुरुष ने, रब दे प्यार विच जुड़े ने, चंगे गुरसिख ने, कोई शब्द ना ला लो, उन्हां कोल बैठ के मैं निमरता सिखां। ये उन्हां दी चरण धूड़ दा है, उन्हां दी चरण धूड़ी दा अर्थ है। साहब जी कहंदे ने सब धर्मों ने मन कमाले, साध किरपाल दयाल गोबिंद। हे वाहिगुरू जी, ये मेरे मालिक जी, जदों गुरु किरपालू दयालू ते सतगुरु रहमत कर देवे, सादा माहे ये हमारी जिंद।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਕਿਰਪਾਲ ਧਿਆਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧਿਆਵੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠਣ ਪਾਵੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਗੇ ਨਿਰਗੁਣ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੀ ਦਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।